خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ اور آج میں یہاں پہ موجود ہوں اس بہت ہی حسین بک لانچ میں. حسین اس لیے کیونکہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے who dared to be different and who dared to speak up. پاکستانی معاشرے میں کچھ بول پانا, کچھ کر پانا اور ایک خاتون ہونے کے ناطے اتنا بولڈ سٹیپ لے پانا بہت ہی مشکل کام ہے. میں بہت مشکور ہوں جتنے بھی لوگوں نے آج یہاں پہ ٹائم نکالا, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, پریس ہے اور بے شمار لوگ ہیں جو ڈفرینٹ چینل سے اور ڈفرینٹ واکس آف لائف سے یہاں پہ تشریف لائے ایک ایسی خاتون کو سراہنے جس کی اسٹرگلز بہت ہی یونیک رہی ہیں اور who actually came forward, who actually narrate her story out to you. We welcome you and I would like to welcome our author of Where the Opium Grows, Miss Hajra Khan. With a great round of applause, please welcome Miss Hajra Khan. Thank you. Please, Hajra, have a seat and we will start from here. Where the Opium Grows ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. جب آپ سب کو ملے گی اور آپ پڑھنا شروع کریں گے اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کر کے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے یہ ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جو کہ پاکستان جیسے معاشرے میں کام کرنا شروع کرتی ہے. چاہے وہ میکڈونلڈس پہ کھڑی ہوئی لڑکی ہو, چاہے وہ کسی میڈیا پہ آئے, چاہے وہ جس بھی اسٹیپ پہ آئے, اسے وہی ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. ایکٹریس ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ایک چھوٹا موٹا کہیں بھی نرس ہو, ایئر ہوسٹس ہو, بس ہوسٹس ہو, جو ہراسمنٹ ایک خاتون کو فیس کرنی پڑتی ہے, یہ اسی اسٹرگلس کا ایک حصہ ہے. اس بک کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی خوبصورت الفاظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے تو وہ ریلیٹ کرتا ہے, اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو میری ہی کہانی ہے, لیکن شاید مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آ کے لوگوں کے سامنے کہہ سکوں. کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ جج کرنے میں لوگ بالکل دیر نہیں لگاتے. لوگ 1 سیکنڈ لگاتے ہیں اور پورا کا پورا اپنا ایک ججمنٹ دے دیتے ہیں بغیر جانے کہ اگلا کن چیزوں میں سے گزرا ہے. کوئٹہ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں اور اپریس سے خاندان میں پیدا ہوئے ایک لڑکی جو پڑھی لکھی, جس نے آگے بڑھا, جو باہر بھی گئی, جس نے اپنے کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کیا اور ہمیشہ سمجھا کہ کائنڈنس کیا ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک دفعہ بیٹھ جائیے. جب ہم بک کو ڈسکس ہی کر رہے ہیں تو آپس میں کانورسیشن ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم حاجرہ سے انہی کی زبانی پوری بک کو سنیں گے, سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی, کیوں سمجھا ضروری کہ اس عورت کی یہ کہانی آپ کو سنائی جائے. Where the Opium Grows is all about وہاں جہاں ڈرگ ایڈکشن, جہاں ویمن ایکسپلائٹیشن, جہاں پولیٹیشینز اور بڑے بڑے لوگوں کا ہول آپ کو کرش کر کے رہ جاتا ہے. So thank you so much for joining us. I would all request you all to please remain silent and attentive during our entire conversation. A big round of applause for Where the Opium Grows by Hajra Khan. آف مائک آن کر دیجیے. چلیے حاجرہ آپ بتائیے کہ where the is it working? Hello. 1 2 3 hello, can you hear me? Hello. جی آپ کام کر رہے ہیں. اب آپ کی آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر جا رہی ہے, جس طرح کہ آپ کی کتاب سے آپ کی آواز جو ہے آلریڈی کافی زیادہ دھوم پہلے ہی مچا چکی ہے اور اب لوگوں کو مزید بھی پہنچ جائے گی. تو آپ بتائیے اپنی اس جرنی کا سفر, انیشلی بینگ فرام کوئٹہ اینڈ اپریس سوسائٹی, اور جیسے آپ نے مینشن کیا تھا اس بک کی شروعات میں, پلیز ریمین سائلنٹ سو دیٹ وی کین کنٹینیو. اس بک کی شروعات میں جو ایک خوبصورت سا ورڈ ہے کہ جب آپ اوپیم کی باغات میں سے گزرتی ہیں, اس فلاور کو دیکھتی ہیں, تو آپ کہتی ہیں یہ فلاور کتنا خوبصورت ہے, لیکن گن تو لوگ اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہمارے معاشرے کی طرح. اسی پہ شروع کیجیے اور دیٹ اسٹارٹنگ نوٹ. Thank you so much and آپ سب لوگوں کو بہت میری 9 سال کی ہیلو نہیں آ رہی آواز. ہیلو, یہ مائک میں تھوڑا سا ہے پرابلم. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں جی, دیٹس بیٹر. Thank you everybody. Thank you so much for coming to this small little event. آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ. میں کوئی بھی پریپریشن, کوئی بھی تقریر لکھ کے نہیں آئی, so nothing is premeditated.
मैं चाहती थी कि मैं स्पॉन्टेनियस एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन और एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन कर सकूं. आई थिंक वो ज़्यादा सिंसियर रहेगा मेरी. आप बताइए फिर हाजरा कि क्वेटा जैसी जगह पे आप पैदा हुई, आपके पेरेंट्स का आपने मेंशन किया, उसमें बताया कि किस तरह आपके फादर ने आपकी बर्थ को सेलिब्रेट किया. तो पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे ख़वातीन को सप्रेस किया जाता है और बेशक हम जितना मर्जी आगे आ जाए उन्हें सेलिब्रेट नहीं किया जाता. जब आपके फादर ने ये स्टेप लिया और फिर आप उस सोसाइटी में बढ़ी तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था एंड व्हाई यू वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट टू द वर्ल्ड वाया योर बुक? एक्चुअली बुक मेरी कैथारसिस है. जब आप लिखते हैं या सोचते हैं आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि ये छपेगी भी नहीं छपेगी, क्या ये आप तक पहुंच सकेगी या जो लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सब पहुंची आज 9 साल बाद पहुंची है. 9 साल पहले मैंने की थी एक छोटी सी अटैम्प्ट की थी, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिश नहीं हो पाई और उसके बाद पाकिस्तान में वापस आना पड़ा. तो जितने भी मेरे अकाउंट्स थे या अमेज़ॉन के साथ था सब हैक किए गए. तो और आज तक वो रिस्टोर नहीं हुए. काफ़ी लोग जो कह रहे हैं ना कि पता नहीं कौन पब्लिश करा रहा है, अचानक से कहाँ आ गई है. ये मेरी अपनी जद्दोजहद है जो अभी तक जारी है. ये अभी तक कमर्शियल पब्लिशिंग तक नहीं पहुँची और अभी भी काफ़ी नर्वसनेस जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मुझे एक नर्वसनेस फील होती है, मुझे एक डर फील होता है कि वाई शुड दिस. तो हाजरा आप ये बताइए कि ये बुक आपने कहा कि बहुत अरसे तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई और आपने कहा कि लोगों ने आपके अकाउंट्स भी बंद कर दिए. जी. तो ये तो एक औरत की स्ट्रगल की कहानी थी, क्वेटा से निकली हुई एक खातून जिन्होंने एक एक्ट्रेस बनने का डिसीजन लिया. इट्सेल्फ हमारे यहाँ एक्ट्रेस बोलते ही जो चीज़ एसोसिएट हो जाती है उसमें लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं. तो क्या ये वो लोग थे या कौन से ऐसे रीजंस थे कि जिसकी वजह से ये नहीं आगे आ सकी पहले? नहीं, अभी भी जैसे ये बुक अभी निकली है मैं देख रही हूँ जो तासुर मुझे मिल रहा है सोशल मीडिया से उन लोगों से, वो बार बार मेरे प्रोफेशन को लेके मेरी बुक को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, मेरे लाइफस्टाइल को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं. और मैं ज़रा एक दफ़ा फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ. मैं एक औरत हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक मॉडल रह चुकी हूँ और एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव एंड एज लॉन्ग एज आई कैन मैं वही कपड़े पहनूंगी जो मुझे अच्छे लगेंगे. किसी और के अप्रूवल के लिए नहीं पहनती और मैं तब तक वही लिखूंगी जो दैट इज़ माई ट्रूथ, जो मुझे अच्छी लगे, जो कहानियाँ मुझे अच्छी लगें, जो फिल्में मैं बनाऊँ वो मैं अपने लिए बनाऊँ और उन लोगों के लिए बनाऊँ मुझे शायद मौका नहीं मिलता. हाजरा आप एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर भी है, एक डॉक्यूमेंट्री भी आप बना चुकी हैं और बेसिकली नाउ यू आर एन ऑथर. तो आप पूरे माइंडसेट को अब कंट्रोल भी कर रही हैं. जो बात आपने की वो बिल्कुल वाज़ेह है और उन्होंने कहा कि शी रियलाइजेस एंड शी ओन्स दैट शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर चॉइसेस. हम लोग एंजेलिना जोली हो गई, कोई भी इंटरनेशनल एक्ट्रेस को तो बहुत एक्लेम देते हैं, पर हमारी अपनी एक्ट्रेस जब सामने आती है तो हम क्यों उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ चले जाते हैं, उनकी काम के ऊपर, उनकी टैलेंट के ऊपर बात नहीं करके बल्कि उनके प्रोफेशन को एक डेरिकेटरी नज़र से देखते हैं. आपने इस बुक में भी ये मेंशन किया और फिर आपने जितने लोगों के साथ एसोसिएशन दिखाया उस बुक में उनके बारे में और उनके माइंडसेट में भी एक्टिंग करना क्यों बुरा समझा जाता था. हालांकि हमारे यहाँ एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स भी हैं, उनको बहुत सराहा भी जाता है, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में उसी वक्त उनको नीचे क्यों देखा जाता है? ये ऐसे कहते हैं ना अंग्रेजी में क्रैब मेंटालिटी कहते हैं. तो कोई भी हो जो थोड़ा सा निकलने चाहे ना अपने उससे बास्केट से, तो बाकी क्रैब्स जो होते हैं ना उसको पुल डाउन करना चाहते हैं. आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, अभी वैसे तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं हूँ, तो जिस दिन मैं होंगी तो दिन आप मुझे अकाउंटेबल ठहराएं कि मैंने किसी ख़जाने से तो नहीं किसी के पैसे चुराए हैं या मैंने किसी प्लॉट के ऊपर रिश्वत तो नहीं ली ना. अगर मैं लूँ देन आप मुझसे सवाल जवाब ज़रूर करें. ठीक है, आपको मुझे मेरी साड़ी का कलर नहीं पसंद होगा या मेरा मेकअप नहीं पसंद होगा, वो उससे मुझे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना आपको. तो आई एम वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट माई चॉइसेस बिकॉज दोज आर माई, दोज आर पर्सनल एंड वो उससे किसी को तकलीफ नहीं पहुँचती. तो अगर मैं किसी के बारे में बात करती हूँ जो शायद किसी के बहुत ही आइडल हो या वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो किसी और का नहीं हो सकता. दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस और दैट्स माय ट्रूथ. तो डर मुझे तब लगता ना अगर मैंने झूठ बोला होता. तो अगर ये जो बुक है ना ये सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी
पब्लिश होने से पहले, तो जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ, जो कुछ भी मैंने लिखा है उनके पास सबसे पहले गई है. तो दैट विल टेल यू दैट आई डिडंट हैव, मुझे कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. कोई बात, आपके पास कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी, एंड यू वर ऑल अपफ्रंट एंड ओपन अबाउट इट. जिनके बारे में ये बुक है जो ये बात करती है, उसमें ड्रग्स की बात भी होती है, उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स के बारे में भी बात होती है, और उन आइडल्स के बारे में बात होती है जिनको आइडल बना के यंग लड़के लड़कियां अपनी पूरी ज़िंदगी शेप करते हैं. आपने इसमें दिखाना चाहा कि ये आइडल क्या एक्चुअली उन सारे मयार के ऊपर पूरा बैठता है कि नहीं. और इसमें जो आपने एक बात बहुत अच्छी की कि उन्होंने कहा कि इट्स नॉट द पर्सनल चॉइसेस दैट एनी पर्सन मेक, बट देयर पॉलिसीज ऑन अ नेशनल फ्रंट. जैसे आपकी बात करें तो आपकी अब फिल्मों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, आपका फिल्म कैसा था, आपकी ड्रामा में परफॉर्मेंस कैसी थी. उसी तरह जिस शख्सियत की आपने बात की है, आपने जिनको हाईलाइट किया है, आपने उनकी पॉलिसीज पे बहुत बात की. आपने कहा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट ही वाज सेइंग और प्रिटेंडिंग और पोर्ट्रेइंग टू द वर्ल्ड आउट देयर एंड व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग. तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बात करेंगे कि वेयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, दिस इज़ नॉट अ लव स्टोरी. मैं बार बार यही सुबह भी मैं एक इंटरव्यू पे कह रही हूँ, ये कोई लव स्टोरी नहीं है. ये एक आइडलाइजिंग, अप्रिसिएशन और एक पॉलिटिकल मूवमेंट का एक हिस्सा होना, और ये समझना कि मे बी दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर अस, फॉर द कंट्री, और उसकी डिसइल्यूजनमेंट है. और वो जो मेरे अपने चॉइसेस हैं, या मेरी कमज़ोरियाँ हैं, या मेरी नाइविटी आप कहते हैं, या बेवकूफ़ियाँ कहते हैं, मैंने सबसे पहले उसका एहतसाब किया है. मैंने अपने पेरेंट्स की बात भी मुझे कभी कभी याद आती है कि प्रोफेशन में नहीं जाओ. मैं कहती नहीं, क्यों नहीं जाएं, क्यों पढ़े लिखे लोगों ने नहीं आना. एक्टिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइटिंग इज़ अ वंडरफुल आर्ट, बीइंग अ परफॉर्मर इज़ अ वंडरफुल थिंग. यही चीज़ें तो करनी है, मतलब डॉक्टर भी बन जाती, कुछ और भी बन जाती, बट मुझे ये करना है. फिर जब मैं इंडस्ट्री की वो जो डार्कनेस देखी ना, जो एग्जिस्ट करती है, मुझे उनकी बातें बड़े हॉन्ट करती थी कि वे आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं जब आप खुद उसमें आ जाते हैं, उस लपेट में आ जाते हैं, जो माँ बाप के जो रिजर्वेशंस होते हैं. और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप कहते हैं लोग इसको अच्छा क्यों नहीं समझ रहे. बात उस काम की नहीं है. आर्ट बेहतरीन चीज़ है. टू बी एन आर्टिस्ट इज़ अ वंडरफुल थिंग. राइटर हो, परफॉर्मर हो, कोई भी हो. मसला इज़ द बिजनेस साइड ऑफ इट. मसला जो है इज़ द सोशल साइड ऑफ इट. और इससे अब आप आंख नहीं चुरा सकते कि ये जो रैकेट्स हैं ये किस तरह आपस में एलीट्स को सपोर्ट करती हैं और उनके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती हैं. बिल्कुल. तो आपने ये एक्चुअली स्टेप लिया, और ये स्टेप थी एक ऐसी लड़की की, और ये कहानी लिखने का मकसद ये था कि जितनी भी और लड़कियां हैं जो एस्पायरिंग हैं वो इन रैकेट्स का हिस्सा मत बने, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो उनको अपनी लपेट में ले आते हैं, उन्हें फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो मुस्तकिल तौर पे एक्सप्लॉइट होती रहती हैं. प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं होता, और आर्ट स्पेशली और फिल्म मेकिंग और एक्टिंग अब एक ऐसा मीडियम है जो हर इंसान के जहन पे जाके मुतासर करती है. बल्कि राजीव गांधी ने भी कहा था ना कि अब हम इस तरह से इस सेंचुरी में आएंगे, और आपकी बुक में भी गांधी की रेफरेंस पे आपने बताया कि किस तरह से आगे से आपको रिजेंटमेंट मिली, जबकि हमें हर उस शख्स की अच्छी बात को एडॉप्ट करना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर के फ्लॉज या हिपोक्रेसीज है उनको निकालना चाहिए. तो दिस बुक इज अ स्टेप अगेंस्ट हिपोक्रेसी, राइट, एंड हिपोक्रेसी of people who start to believe that they are perfect ideas, or so much so that they are prophetic while doing a lot of wrong inside. तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए. जी, मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था कि we are consequences of each other. हम सब जो होते हैं ना, जब आप किसी से मिलते हैं, they're all consequences of our actions. तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो आ रहा था, जब मैंने 2014 में जब मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी जिस इंसान को अभी हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह देख रहे हैं, या उसको मसीहा की तरह देख रहे हैं, या उसको ऐसे देख रहे हैं कि वो एक हीरो है, या वो इस कौम को बचा लेगा, वो हमारी भी बड़ी एक नाइविटी थी और अभी तक है. बिकॉज दिस इज़ नॉट ए मार्वल कॉमिक्स नहीं है, दिस इज़ रियल लाइफ. पीपल आर इम्परफेक्ट, in fact flawed, and politicians are much better actors than us, I think, because they're acting all the time. ट्रम्प का मुझे अभी तक वो कोट याद है, बहुत पहले सालों में उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं रिपब्लिकन बन के लड़ूंगा, बिकॉज दे आर द डमेस्ट वोटर्स. आप कुछ भी कह दें, दे विल बिलीव इट. उनको अपनी टारगेट्स पता हैं, उनको अपने डेमोग्राफिक्स पता हैं. तो ये जो है, मतलब हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बिजनेस मज़हब के नाम पे किया जाता है ना, तो ये अगर करते हैं वो उससे
प्रॉफिट करते हैं ना, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में वो इस तरह के लोग थोड़ी हैं। वो तो वही लोग हैं जो दिन के टाइम हमारे जैसे लोगों के ऊपर बोलते हैं कि नहीं इसने ये साड़ी इस कलर की क्यों पहनी है, ये पूल के सामने तस्वीर क्यों लगाई है, वो फला बीच में अपने शौहर के साथ क्यों वेकेशन पे जा रहे हैं। उनका नहीं लेना देना आपसे। अगर इफ़ यू आर रनिंग फॉर ऑफिस यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये काफ़ी लोगों को आजकल मैं देख रही हूँ बड़ा बोलते रहते हैं ये ज़ाती ज़िंदगी है। नहीं, एक पॉलिटिशियन की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती जब वो असरअंदाज होता है उन डिसीजंस पे, उन पॉलिसीज़ पे जो जाके लोगों को ये कहते हैं कि मर्द रोबोट्स हैं। बेसिकली वही ये बात है। जब आप रेप विक्टिम्स के बारे में भी आप उस औरत को ब्लेम करना शुरू हो जाए, उससे होता ये कि जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनकी रेपिस्ट मेंटालिटी को आप बेसिकली जो है वो हवा देते हैं। ये किसी भी इंसान की एक पर्सनल लाइफ या किसी को मेलाइन करने की अटेम्प्ट नहीं है, ना ही किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन है। पर जब आप एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ आप सब यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आपको फिर उसके ऊपर खड़ा भी होना चाहिए। जस्ट लाइक क्लिंटन इतनी बड़ी वेस्टर्न सोसाइटी में थे लेकिन उनके ऊपर वो ट्रायल क्यों हुआ? बिकॉज ही वॉज एन एपोस्टल ऑफ मोरालिटी एंड ट्रुथ फॉर द रेस्ट ऑफ द नेशन एंड ही एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी। और आपकी पूरी नेशनल पॉलिसी को चला रहे होते हैं, आपका पूरा ट्रेजरी वगैरह उनके हाथ में होती है। हमने मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, एहतसाब अपने आप से शुरू करती हूँ। हमने उस वक्त किसी को ऐसा मसाया बनाया और हम खुद उसको डिफेंड करते थे। और मैं उन लोगों से आज माफ़िया मांगती हूँ 10 साल पहले जो मेरे दोस्त थे जिनके साथ में झगड़ा करती थी कि नहीं ये होगा, बड़ा अच्छा होगा, ये बड़ी तब्दीली आएगी और बड़ा सब कुछ ठीक होगा, इंडस्ट्री में भी सब कुछ ठीक होगा एंड विल बी वेरी प्रोटेक्टेड और ये वो। तो अगर आप ये गलती से ये स्ट्रीम देख रहे हैं मुझे माफ़ कर दें फॉर दोस स्टूपिड आर्गुमेंट्स। आपने ये बताया कि आप भी उन सब लोगों की तरह थे जो सब के सब तंग थे। हमारा जो भी पॉलिटिशियन हो, जो भी लीडर हो, आज तक नहीं सॉरी, हम कल्ट नहीं थे, हम सिर्फ सपोर्टर थे। हम सपोर्टर जरूर थे और हम अभी भी जिस किसी के भी सपोर्टर तो इंसान हो सकता है, वर्शिपर नहीं हो सकता। हम हर किसी को एक इंसान के दायरे उसमें देखते हैं और इंसान में परफेक्शंस हो सकती हैं। तो जो आपने बात की उनकी पॉलिसीज के ऊपर बात की और आपने कहा कि कैरेक्टर असैसिनेशन पे नहीं जाना चाहिए। और मैं कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक जर्नी अपनी एक्सपीरियंसेस बयान कर रही हूँ और जो मैंने देखा है मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया है। जो पॉलिसीज आपने बोली थी कि वो घर नहीं दे पाए और उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो जॉब नहीं दे पाए और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक उन्होंने तो ऑफिस साइकिल पे भी जाना था ना, और वो साइकिल कहाँ है? वो साइकिल किसी ने देखी है? पता नहीं, हमने तो नहीं देखी। लेकिन ये सारे तो ये मेरी पर्सनल, उनके साथ पर्सनली कोई ग्रीवियंस एज सच नहीं है जो एक लव स्टोरी की तरह कुछ लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट, इट्स वाज माय फ्रेंडशिप, माय एसोसिएशन विद हिम एंड माय रिग्रेट। मैंने मेरे फादर का पीटीआई में आना वो मेरे लिए बहुत ही एक रिग्रेटफुल एक बोझ है मेरे ऊपर। अभी तक मुझे बड़ा बोझ लगता है ये सारा प्रोसेस। ये किताब रिग्रेट है, ये किताब पहले तो बताएगी उनके क्या पैजन थे और क्या इनके ताल्लुकात थे इमरान खान के साथ, उनके साथ कलमात कैसे गुजरे, ताल्लुकात क्या थे। इसके बाद अब जब उन्होंने देखा उनका टेन्योर, जो अब उनका एक्सपीरियंस है वो बयान किया ज़ाहरा खान ने और अपोलोजेटिक है कि वो सपोर्ट करती नहीं उनकी इंक्लिनेशन क्या है। मैं किसी को चेंज करने नहीं आई, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस चेंज करने नहीं आई उनकी और वो सिर्फ अपने एज एन आर्टिस्ट तजर्बा मेरा आर्ट, मेरा लिखना, मेरी परफॉर्म करना या तहरीर में लाने और कैथारसिस करने के लिए उन्होंने माय आर्ट इज माय कैथारसिस, माय लाइफ। ये तो मेरी ऑब्वियसली जिंदगी की एक बड़ी चीज़ें, टैबूज हैं, एक बड़ी चीज़ें। तो आपको मार्केट से किताब दस्तयाब हो, अगर आप पढ़ना चाहें कि लिखा क्या है ज़ाहरा खान रिव्यूट पे बड़ा और कैसे उनको दिल को ये धक्का लगा, उन्होंने ये फैसला किया ये किताब लिखकर इमरान खान साहब के जो साबिक वज़ीर आज़म थे करैक्टर को आश्कार किया जाए। वैसे तो रेहम खान भी कर चुकी हैं और उनकी जीती जागती उनके शौक की तस्वीर टेरियान खान की सूरत में हो सकता है इस किताब में कोई नई बात हो, लेकिन ये एक और गवाही ज़रूर गुजर चुके हैं सिर्फ इस पॉलिटिकल फिगर के साथ नहीं, काफ़ी चीज़ों के साथ। जाते दीजिए इसी के साथ रोशन पाकिस्तानी से देखते रहिए रोशन पाकिस्तानी चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।